Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is another topic of chapter number 10, solid, liquid and gases, and the topic name is Charles law. As you know, in a previous lecture we studied about Boyle's law, which Boyle's law. Now we are going to start Charles law. These all are gas laws, and this law was presented by Jacques Charles, which is a French physicist, and in 1787 Jacques Charles investigated the effect of change of temperature on the volume of a fixed amount of gas at constant pressure. In last lecture I taught you that a gas has four variables like temperature, pressure, number of moles and volumes, in which two remains constant, and the two and there is a relation between two. Just like this, here is a relation between temperature and volume. And what is the law which is presented by Jacques is that the volume of a confined gas is directly proportional to its absolute temperature, provided its pressure remains constant. According to Charles, he said that volume is directly proportional to temperature at what conditions? When at constant pressure. When we kept pressure constant, so volume is directly proportional to temperature. If we remove the proportionality sign, we add or we write proportionality constant, which is K. So V is equal to K into T. Here V is the volume of the gas, T is the temperature of the gas in Kelvin, K is a constant, and the pressure and amount of gas means number of moles are held constant. Here I want to tell you about absolute temperature. Absolute temperature 0 Kelvin को कहते हैं. This point is very important. Absolute temperature हम कहते हैं 0 Kelvin. 0 Kelvin क्या होता है? 0 Kelvin is equal to -273 degree Celsius. -273 degree Celsius is equal to 0 Kelvin. एंड 0 Kelvin को एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल सीज़ हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? एब्सोल्यूट Kelvin और एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस. इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम चार्ल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे. देन वहाँ पर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है आपको वहाँ उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझ में आएगा. अभी आपको ये समझना है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो पॉइंट होता है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ 0 Kelvin where the movement of gas molecules becomes cease, मतलब रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है. Here is an experiment which is done by Charles. He took or consider an enclosed chamber with a piston on it and a water bath to heat the chamber, including an electric heating source. Here is a point which you students should keep in your mind, that what is water bath. वाटर बाथ क्या होता है कि वाटर बाथ जैसे हम पानी बॉईल करते हैं और उसके अंदर हम एक कंटेनर रख देते हैं जिसमें वाटर के ज़रिए से आपकी जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है, और वो वाटर जो है वो बॉईल होता है और उस वाटर के ज़रिए जो उसके अंदर कंटेनर मौजूद होता है उसके अंदर हीट प्रोवाइड की जाती है, उसको हम वाटर बाथ कहते हैं. अब यहाँ आप देख सकते हैं जो चार्ल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक इनक्लोज चैम्बर विद अ पिस्टन ये लिया था, ये टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर पिस्टन मौजूद है. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पिस्टन है और नीचे इसमें गैस मौजूद है. ठीक है, ये गैस मौजूद है और इसको जो है इस वाटर बाथ के अंदर रख दिया जहाँ पे इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है. रिलेशन हमने क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड. इट मीन्स
when we increase the temperature, the kinetic energy of molecules increases. As a result वॉल्यूम वुड इंक्रीज. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोलिजन बढ़ता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं. जैसे कि आप कभी मिल्क बॉईल करते हैं तो आप देखते हैं कि जब वो बॉईल होने वाला होता है तो वो कंटेनर से ओवरफ्लो हो रहा होता है. हालांकि जब आप उसको पोर करते हैं कंटेनर में बॉईल करने के लिए तो वो कंटेनर के अंदर फिक्स होता है, लेकिन जैसे ही वो बॉईल होता है तो बॉयल होके वो एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होके एकदम वो ओवरफ्लो होता है कंटेनर से. तो वहाँ पर यही वाला जो है क्या कहते हैं लॉ जो है एप्लीकेबल हो रहा होता है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules increase. as a result expansion takes place. गैसेस में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड. ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स वैसे भी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. जैसे ही हम उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. एज अ रिज़ल्ट कि उनका कोलिजन बढ़ता है और जैसे जैसे कोलिजन बढ़ता है तो उनके वॉल्यूम में क्या होता है, इजाफा हो जाता है. तो ये एक्सपेरिमेंट यही बता रहा है कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि वाटर बाथ के ज़रिए से जैसे ही अंदर गैस को टेम्परेचर मिलेगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में क्या शुरू हो जाएगा, कोलिजन स्टार्ट होगा. और आप ये देख सकते हैं कि जो ये पिस्टन है, यानी कि जो इसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है, दिस इज़ अ मूवेबल पिस्टन. तो ये वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने की वजह से ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा और टेम्परेचर चेंज करेगा. यहाँ आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया 23 से, और ये पिस्टन मूव होके पीछे की तरफ आ गया और इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है. नाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एक्सर्ट मोर फोर्स इन द आउटवर्ड्स डायरेक्शन ऑन द रेस्टिंग पिस्टन एंड द एयर इनसाइड द चैम्बर एक्सपेंड्स. यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के इन्वर्स में बनाया है. वी टेक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, we take volume on y axis and temperature on x axis. This is a direct relation. तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा ऑब्वियसली. जो आगे ग्राफ आपको समझाना है वो है, ये एक और एक्सपेरिमेंट उससे रिलेटेड किया गया कि हमने एक ट्रफ लिया और उसके अंदर जो है हमने टेम्परेचर को आइस क्यूब रख के इसका टेम्परेचर जो है वो लो किया. तो इसके अंदर जो बैलून रखा था वो जो है क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो सिकुड़ गया. बैलून में एयर मौजूद है तो एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम टेम्परेचर होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सीज होने लगी. एज अ रिज़ल्ट जो उसके अंदर बैलून में एयर थी उसकी वजह से एयर कॉन्ट्रैक्ट हुई और बैलून में क्या हुआ, उसका साइज़ कम होने लगा. बट जैसे ही आप इसका टेम्परेचर को राइज़ करेंगे और इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो बैलून है इसका साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ रहा है. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो बैलून है इसका साइज़ जो है एक्सपेंड होता है. ये भी एक एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड है. नाउ मैं आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी समझा देती हूँ कि हमने पढ़ा है लास्ट में एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में पढ़ा है. तो जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं वॉल्यूम के वर्सेस यहाँ टेम्परेचर लेते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है. व्हेन वी इंक्रीज़ वॉल्यूम टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है. तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आएगा. लेकिन अब जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारे पास ज़ीरो और ज़ीरो के बाद ये सारी वैल्यूज़ माइनस में शुरू हो गई, -1 2 3 और ये -273 डिग्री सेल्सियस. तो जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं और ये इस लाइन को क्रॉस करता है, ये वो पॉइंट है जिसमें मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है ना वो सीज हो जाती है और हम इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये आपको ग्राफ जो है आपकी बुक में मौजूद है, इसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा. दिस ऑल स्लाइड्स रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ. और ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट है विच इज़ इम्पॉर्टेंट जो आपको देखना है. द वॉल्यूम ऑफ अ कन्फाइंड गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड इट्स प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. लेकिन किस कंडीशन पे, कि जब आप उसका क्या रखें, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखें.